भारत रबड़ एक्सपो 2026 दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित 12वें इंडिया रबड़ एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। इस 4 दिन की प्रदर्शनी में देश विदेश से कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस भारत रबड़ एक्सपो 2026 महाकुंभ को एशिया की सबसे बड़ी रबड़ प्रदर्शनी माना जा रहा है, जो भारतीय रबड़ क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। इंडियन रबड़ एक्सपो 2026 केवल घरेलू नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को एक सशक्त विनिर्माण राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि रबड़ एक्सपो इस बढ़ती औद्योगिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रहा है। आइए देखते हैं क्या कहना है भारत रबड़ एक्सपो 2026 एसोसिएशन की पदाधिकारियों का और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। Thank you, ma'am. Wow, what a special moment. Let's do this with a huge round of applause. बहुत शुक्रिया. The association during the first IRE in Delhi in 2015. Globally, the industry continues to evolve rapidly, driven by sustainability initiatives, technical advancements, and shifting supply chains. In India, we are witnessing steady growth, increasing global integration, and a strong push towards self-reliance and manufacturing excellence. However, we are also navigating a world marked by geopolitical uncertainties and economic volatility. Recent war in West Asia has resulted in increase in raw material prices like synthetic rubber, carbon black, various oils and chemicals by an average of 40%. This has resulted in both job losses as well as financial policies, ease of doing business initiatives, and forward-looking trade agreements are opening new doors for Indian industry. As we look ahead, I believe the next phase of growth for our industry must be anchored in innovation, research, and development. It is important that we move up the value chain from being strong manufacturers to becoming leaders in technology and advanced applications. Investment in R&D, skill development, and sustainable practices will define our global strength. Let us not just be participants in the global rubber industry, let us be its creators. And I firmly believe the future can and must belong to India. The India Rubber Expo has been over the years emerged as a powerful platform for collaboration, knowledge exchange, and business opportunities. I extend my heartfelt appreciation to the organizing team, our partners, exhibitors, and visitors who have consistently contributed to making this event a grand success. With these thoughts, I warmly welcome you all once again and wish IRE 26 great success. Thank you. Good morning, distinguished dignitaries, respected guests, industry leaders, partners, and delegates. A very well and industry and inspires confidence across this entire ecosystem. As chairman, my role is to represent the collective intent behind this platform. India Rubber Expo 2026 is not merely an exhibition, it is a purposeful governance designed to connect manufacturers, innovators, policymakers, global partners, and emerging enterprises. It is a space where conversations begin and where many of them involve into meaningful collaboration that shape the future of the industry. As chairman of IRE 2026,
my objective has been to ensure that this platform delivers value beyond exhibition, creating an environment where ideas are exchanged with purpose, technology are demonstrated with impact, partnerships are built with intent, and discussion translate into actionable outcomes. India today holds a significant position in the global manufacturing landscape. With its scale, capabilities, and entrepreneurial energy, the country is well placed to contribute meaningfully to global value chains. Through platforms like this, we continue to strengthen the position by fostering dialogues, encouraging innovations, and building partnerships that extend beyond geographically boundaries. I would like to extend my appreciation to our honorable chief guests, our partners, exhibitors, delegates, and the entire All India Rubber Industries Association team for their dedication in bringing this platform to life. As we formally inaugurate India Rubber Expo 2026, I invite each one of you to engage fully with this platform to explore opportunities, to exchange ideas, and to build collaborations that contribute to a stronger and more resilient industry. The true impact of this gathering will be reflected not only these few days, but in the progress and partnership that and successful experience. Thank you once again. Welcome to India Rubber Expo 2026. Thank you. Area, esteemed industry leaders, delegates, exhibitors, and leaders, ladies and gentlemen, a very warm good morning to all of you, and a very warm and heartfelt welcome to the 12th edition of India Rubber Expo 2026, a marquee event of All India Rubber Industries Association. As we all know, industries do not grow by chance. They grow through vision, collaboration, and the courage to innovate. And today, we stand at the intersection of all these three. What we are witnessing today is not just a growth. It is a transformation driven by innovation, sustainability, and global competitiveness. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। As the chief convener, it gives me immense pride to see such an overwhelming global response. We are privileged to host around 400 plus exhibitors, including 40 plus from Chinese exhibitors, with participation from 13 plus countries. This is not just an exhibition. This is a global meeting ground of innovation, collaboration and opportunity. यहाँ नेटवर्किंग भी रबड़ की तरह हो गई है। खींचो तो लंबी, छोड़ो तो मजबूत, और जुड़ जाए तो सीधा बिजनेस बूस्ट. Over the next few days, this platform will bring together innovators, policymakers, global experts, buyers and investors. Minister of Delhi, Shrimati Rekha Gupta ji. Namaste ma'am, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Over to you. Everybody is waiting. ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनय गुप्ता जी को, यहाँ उपस्थित श्री विक्रमपति सिंघानिया जी और डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हमारे एमएसएमईज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो यहाँ इस रबड़ एक्सपो से बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे सपने लेकर के दिल्ली आए हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू दिल्ली. और ये मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है इस इवेंट में आप सबके बीच में शामिल होना, और ये देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस रबड़ इंडस्ट्री ने किस तरीके से अपनी मेहनत के दम पे लगातार आगे बढ़ते हुए देश को एक नए आयाम पे लेके जाने का काम किया.
और मैं अभी अनय जी से बात कर रही थी तो ये भी ध्यान में आता है कि इस समय वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली इन मिडल ईस्ट, आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आप जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं, आज वो तकलीफ में होने के बावजूद भी उम्मीद के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए आपने इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधि भी इस एक्सपो में शामिल होने वाले हैं। लगभग 400 से अधिक स्टॉल्स, एग्जीबिशंस यहाँ लगाई गई है और हर वो कंपोनेंट जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे केमिकल्स हो, मशीनरी, मोल्ड्स, डाइज, ये सारे स्टॉल्स अपनी परफेक्शन को और अपनी एक ग्लोरीफाइड मैकेनिज्म को, आपकी इंडस्ट्री को भी बयां करते हैं कि किस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री में लगातार काम करते हुए हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया और लाखों रोजगार भी क्रिएट किए। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में आना, इस तरह के बड़े एग्जीबिशंस होना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दिल्ली ऐसे सभी इवेंट को होस्ट करती है क्योंकि हम एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम अपने सभी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सपोर्ट करते हुए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिल्ली और देश में ये ग्रो करे, इसके लिए काम करना चाहते हैं। और आपने भी ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से जिस तरीके से रबड़ उद्योग में विकास किया है, विस्तार किया है, ना केवल अपने भारत के स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को लेकर के गए हैं और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने निभाई है। लगातार आप सभी मैन्युफैक्चरर्स को गाइड करते हुए, आपकी समस्याओं को समाधान करते हुए, एक प्लेटफॉर्म देते हुए कि कैसे हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करे। और मुझे खुशी है ये जानकर के कि इस एसोसिएशन के सदस्य, लगभग 1300 से ज़्यादा सदस्य आपके पूरे इस देश भर में हैं और उसमें से 90% से ज़्यादा MSMEs हैं जिनको आप गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, एसोसिएट करते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और ये सारी MSMEs जो हैं हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्नति प्रदान करने के लिए, स्किल में महारत हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, उनको केंद्र देती हैं कि किस तरीके से आपको स्किल्ड होकर के इस इंडस्ट्री में काम करना है। और सबसे बड़ी बात, आप मेक इन इंडिया मूवमेंट के एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देश तरक्की कर रहा है क्योंकि आज इस मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा हर एक व्यक्ति देश में अपने ही प्रोडक्ट बना करके आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कोशिश ये है कि हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होने की बजाय अपने देश में ही इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करें कि आज हमारी क्वालिटी से लेकर के क्वांटिटी तक पूरे विश्व में लोगों के लिए मानक बना दे कि कोई काम करना है, कहीं मार्केट चाहिए तो, और कहीं कस्टमर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो भारत के साथ हाथ मिलाना उनकी मजबूरी हो। आज पूरा विश्व में भारत की इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश हो जो भारत के साथ मिलकर के काम करना ना चाहे। आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है और इसीलिए इस वैश्विक परिस्थितियों में भी किस तरीके से भारत ने मजबूती के साथ
अपने पैर जमाए हुए हैं। आज पूरे विश्व के देश जिस तरीके से भारत का सम्मान करते हैं, आज भारतीयों को जिस तरीके से पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ये अपने आप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, उनके विजन की और इंडस्ट्रियल सेक्टर को उनके सपोर्ट की कहानी कहता है। और लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व तरक्की हमारी रबड़ इंडस्ट्री ने भी की है। मुझे ध्यान है कि पिछले बजट में 1280 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ इस रबड़ इंडस्ट्री के लिए दिया गया था। और जो हमारी रबड़ उत्पादक समितियां हैं, उन सभी 250 समितियों के करीब और 1450 किसान क्लस्टरों का गठन किया गया। और आज देश में जो हमारी पारंपरिक क्षेत्र हैं, लगभग 12,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम लोग रबड़ प्लांटेशन कर रहे हैं। और लगातार इसकी भी कोशिश चल रही है कि जो हमारे रूटीन के जो एरिया है, उससे हटकर भी नई तकनीकों के साथ में रबड़ प्लांटेशन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। और हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की भी फाइनेंशियल हेल्प सरकार के द्वारा की गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि देश में ऐसी सरकार हो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम को समझे और वहाँ अपना पूरा सपोर्ट दे। मैं पूरी तरीके से आपकी इंडस्ट्री में जिस तरीके से आप तकनीक के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसको बधाई देती हूँ। आज अगरतला में, गुवाहाटी में, नागालैंड में 3 नए ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, जहाँ पे रबड़ इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए लोगों को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दिशा में बहुत अच्छा काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने रबड़ इंडस्ट्री में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनके लिए भी बीमा योजना, उनके रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए उनकी पेंशन जैसी सारी सुविधाएं भी सरकार ने मुहैया करवाई है। उनका जीवन सुरक्षित हो, बेहतर हो, लगातार सरकार इसकी चिंता कर रही है। और आप सब लोग जो कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज आप सबका दिल्ली में आना, 3 दिन की इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। दिल्ली में आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से तत्पर रहेगी। आप सबको फिर से एक बार बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए, दिल्ली में स्वागत करते हुए कि आपकी इंडस्ट्री और ग्रो करे और दिल्ली में भी आप जिस तरीके की सुविधाएं चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को जो समाधान चाहिए, उसके लिए सरकार हमेशा तैयार है आपके सुझावों पे काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।